કાનભાઈ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા
ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અક્ષ ત્રિમંત્ર બોલાइए. દક્ષ. હા. નમો હરિહંતાણમ નમો વિતરાગાય વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાઉણમ નમો લોએ સૌ સાવગુણમ. એસો પંચ નમુકારો એસો પંચન મુખારો. સૌ પાવપણાસણો સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌયસ્મ મંગળાણં ચ સવ્યસિં. પડમામ હવૈ મંગલમ પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. વિડીયો ઓન કરો. હા त्रिमंत्र आपने डेली प्रेयर याद है कि नहीं है? दादा. अब तो बोलिए. हाँ. हे दादा भगवान, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे. पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा. मैं बुरी सोबत और कुसंग से
हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा सत्य कभी नहीं छूटे। शक्ति दीजिए प्राप्त मान वचन काया प्रयोग और अपनी मातृ से की सेवा के लिए ही करूं, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म में अपने और अन्य सभी लोगों के साथ की जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मॉरल प्योर रहूंगा, ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। हे दाता को जिस संबंध में अनंत तात्विक शक्ति प्रदान किए जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर। हाँ, हे राधा भगवान, जो पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ। इससे आप मुझे परम शक्ति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। करेंगे अच्छे। एक दूसरा भूल गया आप। ओके, सेपरेशन प्रेयर। हाँ, हे श्रीआत्मा दादा गण फलवोदक लगे। हे श्रीआत्मा दादा गण परमानेंट उदक टेम्पररी है। हे श्रीआत्मा दादा गण प्रियलोदक रिलेटिव है। ओके, होमवर्क क्या था? दादा याद नहीं है। याद नहीं? क्यों? क्या किया वीकेंड में? दादा वो कल से पेपर स्टार्ट हो रहे तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। क्या हुआ? तो दादा वो कल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम। किसकी एग्जाम चल रही है? कल दादा PT2। किसकी? दादा वो रिटर्न, कौन सा दादा सब्जेक्ट है? रिटर्न टेस्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? दादा सारे सब्जेक्ट की। ओके, जय दादा सच्चिदानंद। कल मैथ। जय सच्चिदानंद देव। હા જય સચ્ચિદાનંદ. ઘણા દિવસથી દેખાણા તમે. હા એટલે વચ્ચે આ ઉત્તરાયણનું થયું એના પછી થોડું આવવાનું એટલે આળસ આવતી હતી અને પછી અત્યારે 2 દિવસ થઈ ગયું ને આળસ કરી રાખ્યા પતંગ વાવવાની. એટલે પહેલા તો બહાર હતો મારા ફઈના ઘેર ગયો હતો પણ અત્યારે આયો એના પછી થોડું આમ રાત્રે બધાની જોડે એમને વાત કરતા રમતા એ બધું ચાલતું એટલે રહી જતું હતું. પણ એ તો સત્સંગનો ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર છે તમને? આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે બોડી માટે બરાબર ચાલવા માટે શું કરો તમે? કઈ શું ખાવ છો? કઈ ખાવું પડે છે? હા હા, સંભળાય છે? હા હા બોડીને બોડીને સ્ટ્રોંગ રાખવા માટે શું કરવું પડે છે? ખાવું પડે છે ને? હા તો પછી માઇન્ડને માટે ફૂડ, બોડીને માટે ફૂડ લો છો તો માઇન્ડને માટે શું કરવાનું? સત્સંગ યસ. સત્સંગ ના હોય તો શું થવાનું માઇન્ડનું? ખોટી સાઈડ જતું રહે. એ માઇન્ડ ડિજનરેટ થાય, ખરાબ સોબત થાય અને सक्सेसफुल ना થાવ તમે. ओके, એટલું ધ્યાન રાખજો. ओके, आज का टॉपिक है सेल्फ सफिशिएंट. ओके, सेल्फ सफिशिएंट पढ़ो क्या बोल रहे हैं, लिखा है. देव, कैन यू रीड? હા. Everyone wants to be strong and self-sufficient, but few are willing to put in the work necessary to achieve worthy goals.
तो ये आपको लागू पड़ते हैं? हाँ, सेल्फ आर यू सफिशिएंट था। आर यू सेल्फ सफिशिएंट? कितना 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 परसेंटेज देगा से आपका सेल्फ सफिशिएंट में? हाफ से भी नीचे, मतलब सेल्फ सफिशिएंट में सारी चीजों के ऊपर दूसरों पे डिपेंडेंट रहता हूँ, मतलब। नहीं, सर्टेन थिंग्स ओके। अभी आप काम नहीं करते पैसा के लिए दिस, ना, बट जो व्हाट नहीं इज नहीं, वैसे व्हाट इज वैसे अंडर, नहीं, हाँ, वैसे नहीं, काम ये पैसे के लिए नहीं, लेकिन और भी कई चीजों में, मतलब मुझे आलस आ जाती है काम करने में, तो उस पर भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहता हूँ मैं या कुछ। तो इस उसको सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं उसको। नहीं। तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या होगा? गोल नहीं होगा, एंड यू डोंट डू हार्ड वर्क, एंड यू बिकम लेजी। लेजी होकर क्या होगा? यू बॉडी कैन, बिगड़ जाएगी और। नो, लेजी में से यू कैनॉट अचीव योर गोल। हाँ। See, हमें क्या लिखा है? Few are willing to put in the work necessary to achieve the work. आपका गोल है स्टडी का, आपका गोल है हेल्थ का, आपका गोल है सत्साधन का। तो ये सोचो आपको कितना परसेंटेज देगा। हाँ, हाँ। ठीक है। दाक्ष, दादा। ये अब ये देव बड़ा भैया ने बोला कि दूसरे पे हाँ डिपेंड होता है, जो वो कर सकते हो तो भी डिपेंड, तो आप कैसे है? आप खुद का हाँ काम, दादा, सेम खुद है। काम का खुद कर लेते हैं। हाँ पर दादा, जैसे जो काम मैं कर सकता हूँ पर कभी कभार मैं भी नहीं करता और मम्मी के ऊपर डिपेंड रहता हूँ कि मम्मी कर देगी। हाँ, आपको भी यही प्रॉब्लम है ना? तो हाँ। मम्मी के ऊपर टेंशन क्यों डालते हैं? अच्छा लगता है? नहीं। ए? देव भाई, दूसरे को टेंशन देने का अच्छा लगता है? नहीं। हाँ, तो ये जरा सोचने की बात है। ओके, हाँ। सेल्फ सफिशिएंट का किसी पे डिपेंड नहीं होता, ऐसा होना मांगता। ओके दीपक दादा। आनंद। पहले तो हमें अपना एक हिसाब निकालना है कि हम कितने लोगों पर डिपेंडेंट है। चलो बोलो, आप आपका जीवन कैसे आधारित है, किसका किसका आधार लेते हो, हेल्प लेते हो आप? बोलो जल्दी फटाफट। हाँ दादा, मम्मी, दीदी, फिर दादी, फिर टीचर, टीचर। फिर नाना नानी, फिर हाँ। पुलिसमैन, हाँ। डॉक्टर। हाँ दादा। ये कुछ आपको नहीं दिखा देता है? देव, आप ऐड करो। हाँ। हाँ, डिपेंडेंट तो मतलब फैमिली मेंबर्स पे हमारा जो काम होता है, या मम्मी पे अगर कुछ हमको काम हो, कोई चीज लानी हो, तो वैसी बात, छोटी छोटी बात में मम्मी पे डिपेंडेंट रहते हैं। कोई काम करना हो या करवाना हो तो पापा पे डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर कुछ चाहिए हो फिर भी पापा पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर कोई चीज आप चोरी हुई तो आपने बोला, जैसे डॉक्टर एंड पुलिसमैन, पुलिसमैन पे होता है। हेल्थ के इश्यूज हो तो डॉक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। देन अगर और कुछ काम हो तो दादा। अपन अपने भाई पे या फिर बहन पे हम डिपेंडेंट होते हैं। लक्ष्य लक्ष्य क्या दादा, बता रहे हैं दूध वाले कूलर। भाई? फूड, वो तो बहुत चीज है दीपक दादा।
हमारे 3 गोल कौन से हैं? दादा संसाधन, स्टडी, हेल्थ। हेल्थ। 3 2 1 3 2 1 का मतलब क्या है? नहीं पता। फर्स्ट क्या आता है प्रायोरिटी में? ये 3 दादा गोल में? हाँ, हेल्थ, हेल्थ, है तो आपने आज तीसरा बताया। फिर दूसरा कौन सा बताया? स्टडीज। स्टडी। ये क्या बताइए? स्टडीज। हाँ, और तीसरा संसाधन। अच्छा। अभी समझो, हमें अगर हेल्थ में सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है कि हमारी तंदुरुस्ती, सेहत, हमारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेल्फ सफिशिएंट इन हेल्थ, तो क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड हेल्दी फूड खाना चाहिए वो सब। ये आप पूछो अपने आप को, आप हेल्दी फूड खाते हो? नहीं। नहीं। काव्या भी नहीं खाती है? नहीं दादा, कोई बार, मतलब वैसे कोई बार नहीं खाती, वैसे तो खा लेती हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि ये खिड़की बंद करके क्यों बैठे हैं आप? दादा आपकी आवाज कट रही थी इसलिए। मेरी आवाज कट रही है तो आपकी खिड़की क्यों बंद कर दी? हाँ, चलो ठीक है, जैसी आपकी सिचुएशन है। हेल्थ में हमारे पास चॉइस है क्या खाना नहीं खाना करके, कि नहीं है? हाँ है। है। कि हमारी सारी एक्टिविटी के लिए हमें खाना चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? आप सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर गाड़ी में डीजल ही नहीं है या पेट्रोल ही नहीं है तो क्या करोगे आप? गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। हाँ, के लिए तंदुरुस्त रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमारा खाना बहुत जरूरी है। कोई चाहे कितना भी दबाव करे, कोई चाहे कितना भी अपमान करे, कोई चाहे कितना भी हमें छेड़े कि ऐसे है ऐसा है करके, और हमें किसी भी न किसी तरह से खाने के लिए मजबूर करे, नो मीन्स नो। कर हाँ, सकते हैं ऐसा? है दादा। हाँ। हाँ दादा। और समझो बाहर बाहर खाने का हो ही गया तो आप हाँ, अपना चॉइस रख सकते हो, लेकिन ये चॉइस नहीं रखना और कुछ भी खा लेना, तो आफ्टर ऑल पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो क्या होगा? फिर भी इंजन बिगड़ जाएगा। अरे हाँ। बिगड़ जाएगा? अरे कैसा बिगड़ेगा? दादा गाड़ी पागल हो खराब हो जाओगे आप। जाएगी, गाड़ी चल नहीं पाएगी। ये आपके साथ कौन है? मम्मी। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी कोई है यहाँ पर साथ पे? ना ना, मम्मी है लेकिन वो अभी सोए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है वो तो। ये आपने हेडफोन लगाया था इसीलिए दूर से भी आवाज आ गई, ये मैं समझना चाहता था। ठीक है। तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते, तो ये हाँ, थोड़ा सोचो। हमको अगर सेल्फ सफिशिएंट होना है हेल्थ वाइज, तो खाना प्राइमरी है।
नो कॉम्प्रोमाइज। कोई कितना भी मेरी मजाक करे, अपमान करे, कुछ भी करे, लेकिन जो मुझे नहीं खाना है विथ पक्का कारण, विथ रीजन, आपको नहीं खाना चाहिए। चाहे कोई कुछ हाँ भी बोले, कुछ भी करे, अपमान करे, मजाक करे, हमें छेड़े, हमें चैलेंज करे, कुछ भी करे। समझ में आया? तो हाँ हेल्थ अगर हमारी पक्की रहती है, क्योंकि अब जो हम शरीर को, यानी हम तंदुरुस्त नहीं रहे, ऐसा हम आज खाएंगे तो ये शरीर का परिणाम है ना, वो 20-25 साल के बाद देता है। कुछ परिणाम तुरंत आ जाते हैं, कुछ परिणाम आने के लिए 20 से 25 साल लग जाते हैं। हमें याद तक नहीं रहता कि 20 साल 25 साल पहले मैंने क्या खाया था, गलत खाया था, जिसके कारण आज शायद पर ऐसी असर आई। तो हमें कितना संभालना पड़ेगा, आप सोचो। ये देखो, तो सांसें दादा हमारी अपन चलती है कभी कि क्या बताया? दादा तो अपन कभी भी बाहर का नहीं खा सकते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ बेटे, मैं ये कहता हूँ जब आप बाहर का खाते हो तो हाँ सिलेक्टिव होना है, कुछ भी नहीं हाँ खाना है। हाँ चलो एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। बाहर का सैलेड खाने में हमें अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ दादा अच्छा लगता है। टमाटर टमाटर काटे हैं, ककड़ी काटी हाँ है ना? हाँ अभी वो ककड़ी कब काटी होगी, टमाटर कब काटे होंगे, हाँ वो अच्छे से साफ करते हैं नहीं करते हैं? बात हाँ सही है ना? ये तो मैंने बहुत एलिमेंट्री, यानी बहुत प्राथमिक बात की है हाँ कि हम सैलेड बोल समझते हैं कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है, हाँ लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कैसे पानी हाँ से साफ किया, वो सब है कि नहीं? अभी वो कैसे भी पानी से साफ करके काट के रख दिया, आपको आपने ले लिया, तो हाँ, अंदर जाके अपन को परेशान क्या करेगा पता। कि नहीं? हाँ। तो दादा अपन को क्या पता कि उन्होंने कैसे चीज से बनाया है। अपन को इसके तो कुछ लिए भी हमें पता क्या, नहीं। खाने के बारे में क्या करते हैं, हाँ देखो मैं एक अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। अमेरिका हाँ गए थे, गुरु पूर्णिमा, गुरु हाँ पूर्णिमा का प्रोग्राम था, 4-5 दिन का। तो अभी मैं बहुत कुछ चीजें नहीं खाता, हाँ भरोसा की बात। जैसे दादा भगवान ने ही हमें बताया है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए या ये खाना चाहिए वगैरह। तो जहां मुझे जरा भी शंका पड़ती थी, अभी समझो, ये हाँ मेरी 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 बात बताता हूँ कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। हाँ कोई ऐसा बोल सकते हैं, अरे एक बार खाने से क्या होता है, हाँ बोल सकते हैं। लेकिन जिनका कन्विक्शन है, यानी पक्का है कि नहीं खाना है, हमें झगड़ा नहीं है प्याज लहसुन से, हाँ लेकिन नहीं खाना है तो नहीं खाना है। लेकिन मैं हाँ तमाशा नहीं करना चाहता था, तो जहां मुझे शंका हुई, मैंने लिया ही नहीं। हाँ अभी इतना प्रोग्राम है और मैं बताऊं, और हम तो आप तो पुत्र है, मैं पूछूं कि इसमें प्याज लहसुन है, और वो बोलेंगे अरे सॉरी इसमें है, तो इनको दुख होगा ना? हाँ, दुख नहीं होगा? दादा परेशान होंगे होगा। और कुछ करने की कोशिश करेंगे। अभी इतना बड़े प्रोग्राम में कुछ अलग से करना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। हाँ मैंने नहीं लिया, मैं अपनी डिश हाँ में जो मुझे लगा कि यहाँ इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो उतनी चीज लेके मैं हाँ बैठ गया। Prakash, we need to हाँ जिनके move घर on. जो होस्ट, हाँ We need to move on. Finish. हाँ, जो Con-
या क्विकली, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या बताया, हाँ वो जो होस्ट थे ना, यजमान, हाँ यानी जो जिनके वहाँ जो होस्ट फैमिली थे, उनकी वो दौड़ के आए, अरे आपने ये सब्जी नहीं ली, ये नहीं लिया, मैंने नहीं कहा कि इसमें प्याज लहसुन है। उन्होंने ही सामने से कहा, अरे आपके कारण तो सबको प्याज लहसुन बगैर रखा। एक हाँ बात बनी थी, एक बात बनी थी। हाँ तो फिर मैंने कहा हाँ मैं लेता हूँ करके। कहने की बात क्या है, जहां हमें डाउट आता है, शंका होती है, तो वो हाँ नहीं लेना चाहिए। वो नहीं खाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर वो खाएंगे और उसमें कुछ गड़बड़ है तो परेशान होंगे कि नहीं। हाँ, दादा तो हो ये जाएंगे सेल्फ अपने। सफिशिएंट, हम यहाँ अभी थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं। हमारे 3 गोल में हमें सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए क्या करना चाहिए, वो सोचो। जैसे हेल्थ के बारे में हाँ भी हमने लिया, तो खाना संभालना है, एक्सरसाइज करना है। क्या आप करते हैं एक्सरसाइज? हाँ दादा, हाँ 95 डेली करता हूँ। प्लस परसेंट करते हैं या 5% ही करते, कभी कभार कर लेते हैं? वो सब मैं देखना डेली है। करता वो हूँ। आप ऑब्जर्व करो और अपना खुद का इवेल्युएशन करो। ठीक है? हाँ तीनों हाँ गोल दादा। को, तीनों गोल में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए पढ़ाई में क्या करोगे, और फिर हाँ सच साधन में क्या करोगे, और उसका गोल, ये गोल पर्पस क्या है? What is the purpose of becoming self-sufficient in health? Purpose of remaining self-sufficient in study, and so also सच साधन, पर्पस क्या है, हाँ क्यों करना चाहिए वगैरह। तो वो हमें अपने आप को एजुकेट करना है, सिखाना है, पढ़ाना है, और डिसीजन लेना है। मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। तो ऐसा है ना, बार बार हम उसको, उसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे, तय करेंगे, तो फिर हमारे पक्का डिसीजन आएगा। और एक बार डिसीजन आ जाएगा, फिर वो फॉलो होगा अपने आप। ठीक है? जय सच्चिदानंद। ये 10 देव रूल्स देव ये ये जो ये दिया है। नंबर 3 पढ़ो। हाँ, Health speaks only one warning. If you ignore me today, I will leave you tomorrow. ओके, तो कल ये बातें करेंगे, व्हाट डज इट मीन लीव यू टुमारो? आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सोचो, अपना ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम बताएं उससे, हम बताएंगे जरूर से, लेकिन आपकी भी एक सोच होगी ना, तो वो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। जय सच्चिदानंद। और जय सच। और दूसरा, सब फैमिली मेंबर्स में देखो क्या 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 प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके, उसमें से आपको जागने का है हमको। ओके, तो कल बातें करेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और काव्या तो बहुत पता होगा पापा क्या करते हैं, पापा को क्या पेशेंस आते हैं। मम्मी कितना काम करते,